Hello and welcome once again to yet another exciting episode of the Anubhav Sapra Show, a show where you bond over food, people, culture, travel, and stories. Today we have someone who is a healthcare professional and also a biker, a record holder for the youngest rider to cover such pass and Spiti in the same ride. She is a true inspiration for today's youth. So, with utmost pride, I am delighted to welcome Dimple Singh, a traveler, adventurer, biker, and much more. Hello, sir. Thank you so much. And thank you for giving me the opportunity to have me here and share my experience with you, sir. Yes, अ, sir. डिम्पल, हम लोग जानना चाहेंगे आपके इस जर्नी के बारे में। जैसा मैंने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में कि आप यंगेस्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिसने एक ट्रिप में ही सच पास और स्पीति दोनों ही कवर किया। उसके बारे में उसके बारे में भी, और साथ साथ ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, ये बाइकिंग जर्नी के बारे में। जी, सर। तो सर व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, पहले मैं बताना चाहूंगी अपनी बाइकिंग जर्नी के बारे में। When I was in 10th standard, sir, my uncle, he had a Hero Honda Splendor. And bike was something, sir, which always uh, drew my attention towards. I was always fascinated by bikes. So मैंने मेरे अंकल से कहा कि अंकल व्हाई डोंट यू टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। तो मैंने शुरुआत हीरो होंडा स्प्लेंडर से की थी सर। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड मैंने सीखा कैसे चलाते हैं। उसके बाद सर माय फादर ही हैड अ ओल्ड Majesmo 350. So my father used to ride on bullets, sir. So earlier back then, it used to be said that it is not easy to ride a bullet. Only those who have that kind of personality can ride a bullet, sir. So Papa ne chalai bullet 350, and then that's when and I used to be very proud of him, sir. जब मैं देखती थी पापा को बुलेट चलाते हुए एक अलग ही फीलिंग आती थी. That's when I decided that one day I will make him feel proud, and I will definitely buy my own bullet and make him sit behind me and take him for rides. तो सर वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई 2018 में सर. I bought my bike. In fact, it was a surprise given to me by my brother and by my family. So one fine day I just said, "Bhai, I'm planning to get a bullet." तो भाई ने कहा ऐसे जैसे कि हर भाई अपनी बहन की टांग खींचता है, तो चला लेगी। मैंने बोला हाँ भाई, मैंने ट्रेनिंग ली है। 2 दिन की सर मैंने ट्रेनिंग की थी एनफील्ड राइडर्स से. सो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट इनफ कि आई एम रेडी टू बाय माय ओन बाइक एंड to go for rides. So he said that which one you'd like to buy. So I said a Bullet 500. So he said why a Bullet 500? So I said कि क्योंकि भाई that gives me the same kind of feeling which I used to sit on an old Majesmo 350. और जब भी मैंने उस बाइक की टेस्ट राइड करी तो आई गेट द सेम काइंड ऑफ फीलिंग. सो दैट्स. और सर आप कभी भी टेस्ट राइड करते हो 2-3 बाइक की, बट किसी एक बाइक से ना आपका एक कनेक्शन जुड़ जाएगा. सो मेरा कनेक्शन जुड़ा बुलेट 500 से, बिकॉज ऑफ कोर्स माय डैड यूज्ड टू राइड 350 और ओल्ड मचिस्मो, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट बाइक. एंड मेरे मॉम डैड ने, मेरे भाई ने वो सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए. So yeah, sir, they've been always very supportive. 2018 I bought my bike. 2018 में सर मैंने काफी महाराष्ट्र में राइड करी है. I used to go for breakfast ride. That's when Ahura Hotel is a famous bikers point for riders who are from Mumbai and from Gujarat. So I took my father there. That was my first ride, sir. After that, 2018, I did all the small rides. 2019, sir, when I was very frustrated with work, my life was, becoming I have also been a sports person, so traveling was there. मैं हमेशा travel करती थी for my tournaments, and I was missing, uh, uh, you know, uh, I was missing going to places. So that's when I decided, I need a break, and I got to know about the Satspiti trails. So I spoke to my parents. और क्योंकि सर इतना बाइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ छोटी राइड ही करी थी. सो दे वर अर्लियर a bit hesitant कि आप कर पाओगे 14 दिन आपको बाइक चलानी है, and you'll be riding in the mountains, and that too for the first time. And they had heard Sachin Spiti is among one of the dangerous roads in the world, or you have to cross ice cold water bodies, you have to ride in mud slush, there's a lot of off-roading.
So I said, mom, there is always a first time. मैंने डैड को भी बोला, डैड, there is always a first time, and I have that kind of confidence कि हाँ मैं चला लूंगी. And sir, what I believe is what is important is कि अगर आप कोई भी चीज करते हो ना, वो पैशन होना चाहिए. अगर आप वो डर नहीं होना चाहिए. तो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बाइकिंग. बाइकिंग ने मुझे बहुत ही खुशी दी. आई टू फील वेरी फ्री. So yeah, I went for the trails, and during those 14 days of trails, sir, by traveling आपको बहुत कुछ सिखा जाता है sir. Every time I traveled, I came back, I was a very different person. When I was riding in the mountains, sir, मैंने वहाँ के लोगों को देखा, how humble they are. They don't have cell phones, or they are not into आजकल की generations into Instagram, Facebook, social media. They don't even have cell phones, और वो लोग इतनी खुशी से जीते हैं sir. They live a very simple life and peacefully. So every time I rode, I went to places, I came back as a very different person, sir. And I always say people that you should travel. You will come back as a very different person. फिर मैंने ट्रैवल करी सर. वो 14 दिन आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ. वंस आई कंप्लीटेड द ट्रेल सर, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर, whose name is Mr. Akhtar Sheikh. He's a very renowned rider as well. So sir, उन्होंने मुझे कहा कि Dimple, I think you have made a record. I don't think so there's any girl who, at this small age, who has completed the Satspati trails together, combined, in one ride. So सर फिर मैंने अप्लाई किया रिकॉर्ड के लिए, एंड देन वेरिफिकेशन हुआ. तो वो काफी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उनका सर. So उसके बाद सर I got an email from them that congratulations, so we have approved your request, and you are one of the youngest riders who have crossed such pass in Spiti Valley in the same ride, and that's how I got my record sir. And क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था. 14 days मैंने उनको बता के रखा था there is a high possibility that I'm riding in the mountains. But I used to make sure sir, क्योंकि if your parents are allowing you, I was always a very responsible child and a responsible rider as well. One of our rider had a BSNL phone, so I used to keep my parents informed. Morning when I used to leave for ride, I used to call them. I used to inform that yes, we are leaving for ride. And when I used to come back after completing the trails, when we used to come back to the hotel, I used to inform them that yes, today's trail is completed, and I have reached back to the hotel safe. So yeah, and even sir, काफी लोगों को मैं ये भी कहती हूँ कि इफ यू आर राइडिंग इन द माउंटेन्स, डू आपका जो गूगल ट्रैकर रहता है सर, वो ऑन कर दीजिए गूगल लोकेशन आपके किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, और जो शेयर इट अमॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको पता रहे कि कहाँ कहाँ आप जा रहे हो. इट इज वेरी हेल्पफुल सर एट टाइम्स. So yes, so that's how I got my record. Wow, Dimple, that's quite a motivational journey, I can say, if I can say. मतलब शुरुआत एक स्प्लेंडर से हुई, उसके बाद आप बाइकिंग का आपका इंटरेस्ट आया, आपने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर आप सच पास और स्पीति पे राइड पे गए, और आज आप यंगेस्ट राइडर मतलब हैं जिन्होंने दोनों एक साथ कवर किया है, सच पास और स्पीति. तो ये बाइकिंग का पैशन कैसे शुरू हुआ? मतलब कैसे आपको लगा कि ये पैशन है, इसे मुझे ये आगे एक्सप्लोर करना है? सर स्प्लेंडर से शुरुआत की, फिर कॉलेज में आई डोंट नो सर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाइक, इट आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद बाइक्स. मुझे, और सर काफी बार ऐसे भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है लड़कियों को कि नहीं चला सकती बाइक, या अब बुलेट नहीं. जब मैंने भी सर मेरे ही कुछ ऐसे क्लोज कहा कि आई वुड लाइक टू बाय अ बुलेट 500, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, बुलेट लड़कियां नहीं चला सकती, इट्स अ वेरी हैवी बाइक. तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों नहीं चला सकती, बिकॉज द मशीन इज नॉट नोइंग इट्स अ फीमेल who's riding or it's a male who's riding, and as far as if your balancing is good, so I believe आप कर सकते हैं वो चीज. तो सर जो चीज, अगर जो लोग आपको बोलते हैं आप वो चीज नहीं कर सकते, मुझे वो चीज करने में बहुत अच्छा लगता है सर, और मुझे वो चीज करने में और उनको रॉन्ग प्रूफ करने, मुझे बेसिकली यही है कि क्यों नहीं कर सकते सर. इफ गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग, आई बिलीव हर कोई कर सकता है. इट इज नॉट, एंड इट्स हाई टाइम सर. लोग ऐसे हम बाइक राइड्स के लिए निकलते हैं, तो
कुछ लोग बड़े सरप्राइजिंग तरीके से देखते हैं, कुछ लोग बड़े शॉक होते हैं सर, कुछ लोग ऐसे मार के जाते हैं जानबूझ के, knowing that there's a female rider who's riding. But sir, it's high time I feel that बहुत ही नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि हाँ लड़कियां भी बाइक चला सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, जितना हम ज्यादा नॉर्मलाइज करेंगे, जितनी लड़कियां ज्यादा बाइक चलाएगी, आई थिंक उतना फिर ये जो पूरा राइडिंग कल्चर है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है वुमेन्स पर्सपेक्टिव से सर, जो कि अभी हो भी रहा है। काफी आप देखोगे सर, महिलाओं को काफी ज्यादा बाइकिंग कम्युनिटी में अभी वो आ रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेल्फ सर। सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी बेटा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक सोसाइटी का नॉर्म होना चाहिए, इसमें कुछ शौक नहीं लगना चाहिए कि वो फीमेल राइडर है या लेकिन एक सोसाइटी का नॉर्म होना चाहिए, लोग जाएं और एक्सप्लोर करें। अच्छा, नेक्स्ट मेरा एक सवाल था ये कि अभी आपने अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आप पुणे में हैं, आप मुंबई से पुणे राइड पे आए हुए हैं, तो आपकी सबसे एक्साइटिंग ट्रिप अभी तक कौन सी रही एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस वंस, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। सर मोस्ट एडवेंचरस वन तो मेरी सच स्पीति ही रही है सर, बिकॉज आई every time I was riding at a patch, I never knew कि what is ahead. क्या ahead I will be riding on the mud, I'll be riding on the slush, or I'll be crossing a water body. So sir, adventurous तो definitely सच स्पीति रही है। and स्पीति में सर sorry सच पास में एक time ऐसा था that there were like 30 feet of ice walls and I was riding between the 30 feet of ice walls. So इतना ब्यूटीफुल था वो सर, इतनी मतलब यादें जुड़ी है वो राइड से, बट इक्वली डेंजरस भी था। बट सर किसी चीज को आप एंजॉय करो ना तो फिर वो डर निकल जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ था। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग सर, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग टू द कोर, एंड वो डर सारा निकल गया था सर। फिर जब भी हम सच पास पहुंचे, मैंने हेलमेट निकाला, आई वाज द ओनली गर्ल सर, और मेरे साथ और एक राइडर थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, सो शी वाज देयर इन द बैकअप व्हीकल बट शी आल्सो रोड सर। तो जब भी हमने ऐसे हमारे हेलमेट निकाले और लोग ऐसे हमें देख रहे थे कि अरे लड़की आई है, लड़की आई, तो सर एक ऑब्वियसली प्राउड फीलिंग भी आता है आंख में, सबके आंखों में आंसू थे। 14 days ऑफ दैट जर्नी वाज कंप्लीटेड सर। हम बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे सर, एक बार लैंडस्लाइड हुआ था तो हमें 3 घंटे रुकना भी पड़ा था। तो सर एक चीज हमने सीखी है, मतलब मैंने सीखी है एज अ राइडर, कि कभी भी ऐसे पहाड़ों में अगर लैंडस्लाइड्स होते हैं, सो यू हैव टू ऑलवेज वेट देयर अनलेस एंड until यू सी एनी व्हीकल, एनी लोकल और एनी व्हीकल कमिंग, मतलब वो आ रहे हैं वहां से, तब तक राइड ना करे जब तक आपको कोई भी व्हीकल नहीं दिख रहा है आते या जाते हुए। ये चीज हमने सीखी थी, क्योंकि काफी राइडर्स कैसे होता है, जैसे लैंडस्लाइड होता है वो जोश में निकल जाते हैं एंड देन दे गेट स्टक, बट वी वर वेटिंग कि हमें एक व्हीकल दिख जाए आते या जाते हुए, मतलब एक व्हीकल दिख गया आपको आते या जाते, दैट मीन्स लैंडस्लाइड जो था वो एरिया कवर, मतलब वो लोग ने जो है लैंडस्लाइड हुआ है, दैट पार्ट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ एंड देन यू कैन प्रोसीड। सो वो चीज सीखी थी, प्लस सर इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी गियर्स, उस चीज के बारे में पता चला, बिकॉज one of our riders sir, landslide हुआ, a stone fell and it hit on his head, and since he was wearing a very good helmet तो वो बच गया सर, बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस फॉर 15 minutes, बट क्योंकि उन्होंने अच्छा हेलमेट पहना था, देन आफ्टर 15 minutes उनको होश आया एंड एवरीथिंग वाज लकीली कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी गए। सो राइडिंग इन द माउंटेन सबको ऐसा लगता है बहुत ब्यूटीफुल है वो, बट इट इज इक्वली डेंजरस ऑल्सो, बट येस यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। सो येस, एडवेंचरस ट्रिप वाज सच पास एंड स्पीति, एक्साइटिंग ट्रिप वाज सर माय फर्स्ट राइड टू गोवा राइडर मेनिया। राइडर मेनिया एक फेस्टिवल है सर, जहाँ पे जितने भी बुलेट ओनर्स है सर उनके लिए 3 दिन का फेस्टिवल होता है। सो दैट वाज माय फर्स्ट राइडर मेनिया। उसमें काफी राइड्स भी होते हैं, सॉरी इसमें काफी रेसेस भी होते हैं सर, जैसे डर्ट बाइकिंग होता है, ऑब्स्टेकल रेसेस होता है, एंड then ace of hill hota hai, so there are different races also sir which you get to participate in,
एंड एक बाइकर्स फेस्टिवल होता है सर 3 दिन का, और इतने सारे बुलेट्स आप देखते हैं, बुलेटियर्स को देखते हैं, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं राइड करके, सम पीपल आर कमिंग ऑल द वे डाउन फ्रॉम साउथ, एंड एक अलग ही माहौल होता है सर हमारे लिए. वी गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू बाइकिंग ऑल्सो. तो या दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप सर, व्हिच इज टू गोवा राइडर मेनिया सर. अच्छा, आपने अभी जब आप बता रहे थे अपने ट्रिप के बारे में, तो आपने मेंशन किया कि हेलमेट होना चाहिए। उससे पहले आपने मेंशन किया कि आप गूगल मैप्स को ऑन करके शेयर कर दें अपने किसी रिलेटिव के साथ, जिनकी जो भी कंसर्न है उनके साथ। तो और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी अब बाइकिंग की करियर शुरू कर रहे हैं या फिर उनका पैशन है वो आगे फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि अगर कोई राइड वो प्लान करते हैं, तो किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? सर स्पेसिफिकली अगर आप माउंटेन्स पे राइड कर रहे हैं या कहीं पे भी राइड कर रहे हैं, प्लीज यू शुड ऑलवेज हैव द फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू इज व्हाट आई बिलीव. एंड देन आफ्टर दैट सर यू शुड आल्सो हैव स्पेयर्स विथ यू. क्योंकि सर अगर आपको, चलो ठीक है, कुछ फिक्स करना नहीं भी आता है, अगर ब्रेकडाउन हुआ है बाइक का, बट अगर आपके पास स्पेयर्स अवेलेबल होंगे तो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प, इज व्हाट आई बिलीव सर. सो अगर मैं कहीं पे भी राइड के लिए जाती हूँ सर, बी इट अ ब्रेकफास्ट राइड और एनी राइड, बट आई ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा स्पेयर्स विद मी. सो एक्स्ट्रा स्पेयर्स हो गए, बेसिक मेडिसिन हो गए, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. एंड सर कैरिंग योर प्रोटीन बार्स, ड्राई फ्रूट्स, I always carry that also along with me. It is really very important, sir. और सर एक चीज मैं हमेशा अपने साथ मेरी खुद की बॉटल कैरी करती हूँ, एंड आई रीफिल इट. जगह जगह पे जाके मैं रीफिल करती हूँ. आई डोंट बिलीव इन बाइंग प्लास्टिक बिस्लरी बॉटल्स सर. तो मेरे पास मेरी खुद की बॉटल रहती है स्टील की, एंड मैं वही प्रेफर करती हूँ. हम राइड के लिए जाते हैं, हम काफी राइडर्स को बोलते भी है. और सर एक गार्बेज बैग भी हम अपने साथ कैरी करते हैं, ताकि अगर हम कैंपिंग राइड के लिए जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो जो भी कचरा है वी कैरी इट विद अस सर. तो एक गार्बेज बैग हम लेके जाते हैं, उसमें हम पूरा कचरा, एंड देन वी डिस्कार्ड इट सर टू द राइट प्लेस. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई वुड एनकरेज कि अगर आप राइडिंग के लिए जा रहे हो, कैरी योर ओन स्टील बॉटल, कैरी योर ओन कप. जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूसेज नहीं करना चाहिए. हमें हमें लिटर नहीं करना चाहिए. वी एज अ रिस्पॉन्सिबल राइडर, लोगों को हमें एज एन एग्जाम्पल लेना चाहिए. हमें लिटर नहीं करना चाहिए. हमें खुद की गार्बेज बैग, इफ यू आर गोइंग फॉर अ कैंपिंग राइड सर, खुद की गार्बेज बैग कैरी करो या कहीं पे भी जा रहे हो, एंड डू नॉट लिटर. सो ये कुछ चीजें हैं सर, मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ. अच्छा डिम्पल, आप अभी जैसे अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कोई ड्रीम राइड है जो आप करना चाहते हैं अभी इन फ्यूचर, कि आप प्लान कर रहे हो? जैसे आपने सच पास और स्पीति किया और गोवा आपने बताया, अलग अलग राइड्स के बारे में। तो इन फ्यूचर डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, एनीथिंग प्लान? सर मुझे हमेशा से ऐसा मेरा मानना है कि इंडिया में काफी प्लेसेस है सर जो एक्सप्लोर करने जैसे हैं. तो लोग हमेशा ऐसे पूछते हैं कि आर यू प्लानिंग फॉर एन इंटरनेशनल राइड, और व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, यू नो, एनी, आई डोंट नो, दे आर ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट दिस इंटरनेशनल राइड्स. बट मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि इंडिया में ही इतनी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, व्हाई नॉट एक्सप्लोर माय ओन कंट्री फर्स्ट. सो ऑल इंडिया राइड करनी है सर, एक वो राइड करनी है, और सर एक मुझे लद्दाख भी करना है. मैं लेह लद्दाख, ऑब्वियसली इज एवरी बाइकर्स ड्रीम टू राइड एट लेह लद्दाख, but I want to ride at Leh Ladakh with my father sitting behind me. So yes, sir, that is also one of my dreams, sir. तो उनको बिठा के मुझे राइड करनी है टू लेह लद्दाख सर. क्या बात है! मतलब मैं कुछ दिन पहले आपका इंस्टाग्राम देख रहा था। आपने पोस्ट भी किया है लास्ट 20th जून को इनफैक्ट, जी जिसमें फादर आपकी पिक्चर है अपने पापा के साथ आपने फ़ोटो लगाई हुई है, कंटिन्यूइंग द लेगेसी के नाम से। हाँ जी, जी, बहुत अच्छा। कंटिन्यू लेगेसी. यस, अ, थैंक यू सो मच. अच्छा, नेक्स्ट अभी हमने आपके राइडिंग जर्नी और पैशन के बारे में बातचीत की। थोड़ा-सा आपके जो आपका प्रोफ़ेशन है, आप एक हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल हैं। उसके साथ कैसे बैलेंस करते हैं अपने पैशन को? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल रहता है लोगों की। बहुत लोग करना चाहते हैं ऐसा जैसे जो आप कर रहे हैं, लेकिन इस साथ-साथ कैसे इसको एक सही बैलेंस बनाया जाए? पैशन और साथ-साथ आपका प्रोफ़ेशन भी है, उन दोनों के बीच?
जी। तो सर मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे जो भी छुट्टियाँ मिलती है सर, सो आई ओनली यूटिलाइज़ माय लीव्स फॉर माय राइड्स। सो यस, जो भी छुट्टियाँ मिलती है, जैसे कि इफ आई एम गेटिंग 24 पीएल्स, तो साल में 2 पीएल आप ले सकते हैं 12-12 दिन के। तो माई is always fixed. In the month of June, I will go for a long ride, and in the month of November or December, I will go for a long ride. So those leaves are already applied, sir. और बाकी I get a fixed Sunday off. Being a healthcare worker, that's the only day I get off. So अगर कोई for example, just giving you an example, sir, अगर कोई PH is falling on a Friday, which is for example 26 January is falling on a Friday, then I put a Saturday as my छुट्टी, and then Friday Saturday से वो 3 दिन मिल जाते। 3 दिन में जो भी ऐसा जगह है जो मुझे लगता है कि yes I can explore this place, so I then ride to those places, sir. So yes, difficult होता है, but everything is on your planning. और सर जहाँ पे बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आपको जाना ही है सर, and if you have decided something, then obviously planning is important, and plan the things accordingly, sir. तो that's how I plan it, and जैसे ही मौका मिलता है सर, मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, then जैसे कि sir, last year in the month of November, I got a chance to ride to Gir, Gujarat. So I went there, sir. फिर this year in the month of February, I 4 छुट्टियाँ आ रही थी continuous, sir. So I went to Udaipur and I came. So yes, sir. तो ऐसे चीजें प्लान करते हैं हम। अच्छा डिम्पल, आपने कभी सोचा है कि जो आप आपने ये राइड्स की और आगे भी जो प्लान कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियो, और से अब तो इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि आप अपने इंस्टाग्राम पे नॉट रेगुलरली, बट हाँ आप ऑन एंड ऑफ पोस्ट करते रहते हैं, बट हैव यू Yes. प्लान कि इस राइड पूरी जर्नी को जहाँ जहाँ आप जाते हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, और ताकि उससे दोनों फायदे हैं। एक तो आपकी भी जर्नी एक मेमोरीज की तरह इकट्ठी होती जाती है, और कभी आप देखते हैं कि अच्छा 3 साल पहले 5 साल पहले मैं वहाँ गया था, वो ये था। दूसरा फिर जो Yes. नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका होता है कि वो भी जाएं, तो उनके लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा उन्होंने ऐसे शुरुआत की थी, ये टिप्स हैं, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, ऐसे रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो कभी सोचा आपने कि आप इसको आगे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे अपनी इस जर्नी को? सर मैंने सोचा तो है सर, बट क्योंकि अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि नहीं मिल पाता टाइम, उतना वक्त नहीं मिल पाता, बट माय पेरेंट्स ऑलवेज वांट मी टू ओपन माय ओन यूट्यूब चैनल एंड डॉक्यूमेंट दीज थिंग्स, सर। क्योंकि काफी चीजें होती है, जैसे कि व्हेन आई वेंट टू सचपा से स्पीति, मैंने मेरी बाइक ट्रांसपोर्ट की थी ट्रेन से टू चंडीगढ़, एंड काफी छोटी छोटी चीजें होती है सर, लोगों को नहीं पता रहती। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट, उससे लोगों को पता भी चल जाता है। इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग आल्सो, मे बी मेरी जर्नी देख के कोई इंस्पायर हो जाए। सो यस सर, उस चीज के बारे में माय पेरेंट्स ऑलवेज वांट मी टू हैव माय ओन यूट्यूब चैनल, एंड यस सर, डेफिनेटली वन डे आई विल। बस थोड़ा सा और ज्यादा समय मिल जाए मुझे सर, बस उसी चीज का के लिए आई एम वेटिंग सर। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। आप कभी सोचते हैं कि अब ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन मैं हेल्थ केयर प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में इतने सालों से, आपको 7-8 साल हो गए मेरे ख्याल से, जी सर। हाँ, कि जी सर। इससे मैं फुल टाइम अपने पैशन को फॉलो करूंगी, एक समय ऐसा आएगा। जैसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मैं भी जॉब में था और फिर मेरा पैशन था, मैंने भी शुरुआत की है। 4 साल पैशन और जॉब दोनों को बैलेंस करता रहा, लेकिन एक समय ऐसे आया कि नहीं, मैंने सोचा कि अब समय, इट्स हाई टाइम आई शुड क्विट माय जॉब एंड स्टार्ट फॉलोइंग माय पैशन। और यस सर। तो ऐसा आपको लगता है, कभी आपके ज़हन में आता है कभी ऐसा कुछ? आता है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत आता है। क्योंकि बट सर अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है दैट आई शुड नॉट टेक अ स्टेप बिहाइंड, बिकॉज द करंट सिचुएशन इज लाइक दैट आई एम वर्किंग फॉर COVID-19 पेशेंट्स एज वेल। सो इन इस सिचुएशन में आई डोंट वांट टू टेक अ स्टेप बिहाइंड, बट यस वंस थिंग्स आर नॉर्मल और सब कुछ ऐसे ट्रैक पे चल रहा है, आई एम ऑल्सो सेविंग अ लॉट, आई सेव अ लॉट फॉर माई ट्रैवल सर। सो जैसे कि कहा कि काफी चीजें मैं प्लान करती हूँ, तो है सर सारी चीजें, बट एट दिस मोमेंट आई फील दैट आई शुड
not take a step behind. But हाँ, मैंने सोचा है sir that I really want to dedicate all my time towards my passion. और अभी फिलहाल काम कर करके एक एक चीजें I am buying sir, जैसे कि GoPro हो गया for editing, और if you want to buy a gimbal, और तो सारी चीजें saving से ही आते हैं. आप I'm working, I'm saving, I'm also going for my ride, and I'm also planning for my future. That's what I'm doing sir right now. अब नेक्स्ट डिम्पल, हम लोगों ने राइडिंग की बात कर ली, आपके प्रोफेशन के बारे में बात कर ली, आपके पैशन की बात कर ली। आप इतने जगहों पे गए हैं, हमारा मेन जो हमारे ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं फूड एंथुजियास्ट हैं, फूड लवर्स हैं। वो जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस फूड रिलेटेड जो आपके बाइकिंग जर्नी में हुआ है और वो आपके अभी भी एक तरह से कहते हैं ना फूड मेमोरीज में चला जाता है कि हमने वो चीज़ वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड थी, वहाँ पे ये चीज़ खाई और आज तक उसका टेस्ट आपके मेमोरीज में है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ? Sir, like me and my friends who are bikers as well, we always try कि हम जितना हो सके उतना लोकल फूड ट्राई करें. हमें बहुत ही बढ़िया लगता है ऐसा लोकल फूड ट्राई करना. वी आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड बिकॉज सर एक बार आप टायर्ड हो जाओ सर तो फिर आपको वो अच्छा खाना चाहिए, यू नो, टू मेक योर सेल्फ फील वेरी हैप्पी. So I personally get very happy when I get to eat good food. So my native is from Varanasi, sir. So जब भी मैं वाराणसी जाती हूँ, I always make sure कि काफी चीजें हैं मैं ट्राई करूँ. वाराणसी की लस्सी बहुत फेमस है. Malayo is very famous. Kachori and आलू की सब्जी. A lot of people eat that for breakfast. So that is something which I do not want to miss out when I am at Varanasi. And apart from that, the litti chokha over there. So लिट्टी चोखा तो आपको हर स्ट्रीट्स पे मिल जाएगा when you are at Varanasi. So yes, that is something I really love to eat. And then when I am riding, when I had been to Udaipur, sir, I am a big fan of paratha. I am a paratha lover. So there was this Sai Baba Paratha Center when I was in Udaipur. It's a very famous paratha center. So वहाँ पे हम गए थे, and they serve paratha with dal makhni and a glass of buttermilk, Mhm. and yeah, and a pickle is there. So बहुत ही टेस्टी खाया था हमने पराठा. Whenever my friends are traveling to Udaipur, I always request them that please go visit. वहाँ पे सर फतेह सागर लेक पे हम गए थे, तो everywhere we were seeing Bombay pav bhaji, Bombay pizza center, but I did not wanted to try all that because I am from Bombay. बहुत सारी चीजें हम खाते रहते हैं. I wanted to try something authentic. तो वो ट्राई किया था हमने, और फिर हमने दाल बाटी ट्राई की थी. There's this famous restaurant संतोष दाल बाटी हाउस. So वहाँ पे हमने दाल बाटी खाई थी, गट्टी की सब्जी खाई थी. So yeah, so whenever my friends are traveling to Udaipur, I always recommend them to go to these two places and eat. And बाकी सर when I was traveling to Gujarat, I never knew. वहाँ पे मैंने एक हम राइड कर रहे थे और हाईवे पे सर एक मटका था और बहुत ही भीड़ लगी हुई थी. एंड देयर वाज दिस आंटी हु वाज सर्विंग समथिंग फ्रॉम द मटका. तो हम रुक गए देखने के लिए कि क्यों इतनी भीड़ है, क्या ऐसा क्या है जो सर्व किया जा रहा है. दैट्स उसको बोलते हैं उम्बड़ियू. वो काफी वनस्पतियां होती है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. उसको वो लोग 3-4 घंटे या 5-6 आवर्स के लिए वो लोग वो अर्दन पॉट में पकाते हैं सर. एंड देन दे गिव इट टू ईट along with a coriander mint chutney. So हमने वो ट्राई किया था, हमें वो भी काफी पसंद आया था. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हर्ड समथिंग कॉल्ड एज उम्बाड़ियू, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू ट्राई आल्सो, और वो चीज हमें पसंद आई थी. सो यस, whenever we are traveling we try to eat the local food over there sir. और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे मिल ही जाता है सर चीजें एकदम अलग सी ट्राई करने के लिए. तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं सर. जितने भी है मेरे ग्रुप में सारे फूडी है सर. तो एक बार हम थके हारे तो हमें बहुत ही अच्छा खाना चाहिए खाने के लिए. नहीं, आप कभी दिल्ली आए हैं? दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे मतलब मैं देखता हूँ, मैं जब अभी तो खैर हमारे टूर्स नहीं हो रहे हैं कोविड के कारण, लेकिन जब हम लोग टूर्स करते थे हम लोग देखते थे मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट राइडर्स, कोई पॉइंट जैसे पुरानी दिल्ली में वो छिनाराम एक फेमस शॉप है, वहाँ पहुंचे मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग. तो काफी फेमस पॉपुलर स्पॉट्स हैं. एक फिर मुझे ध्यान है मैसूर कैफे है, साउथ
एक्स साउथ एक्स नहीं, मतलब सेंट्रल दिल्ली के पास में ही है, तो वहाँ पे भी काफी लोग जाते हैं। साउथ एवेन्यू, मैं साउथ एक्स बोल रहा था, साउथ एवेन्यू के पास वहाँ भी काफी बाइकर्स जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये है कि मतलब राइडर्स हैं, साथ साथ राइडर्स काफी फूडी भी होते हैं, और जी, आप जब राइड कर रहे होते हो जगह जगह रुकते हैं, तो इट्स जस्ट अ डिफरेंट मोड ऑफ, आप कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं तो रास्ते में रुक के एक्सप्लोर करते हुए, बाइकिंग के साथ ये लिबर्टी रहती है कि आप अपने हिसाब से जहाँ मन करे वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल, डिम्पल, आप मुंबई से हैं। हम लोग जी। इससे पहले अपना सेशन एंड करें, जाते जाते टॉप 5 प्लेसेस टू ईट इन मुंबई, विच आर योर फेवरेट वंस, मतलब योर पर्सनल फेवरेट वंस, नॉट द पॉपुलर, बट आपको जो सबसे अच्छा लगता है और जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम या फिर मुंबई विजिट कर रहे हैं। Since I'm a Mumbaiker, sir, I love eating vada pav. So, काफ़ी जगहों पे मैंने मुंबई में वड़ा पाव खाए हैं सर, बट माय फेवरेट वड़ा पाव, द प्लेस वेयर आई गेट वेयर you'll get good वड़ा पाव इज कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव। वहाँ पे यू आल्सो गेट दिस चूरा पाव सर। तो वहाँ पे अगर कोई जाता है तो मैं उनको रेकमेंड करती हूँ दैट इन केस if you love to eat that chura, do try the chura pav as well. So if you want to eat a good vada pav, you can always visit Kirti College Vada Pav. And then my favorite place to eat South Indian food is काफी लोग सर हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, so we go to Cafe Madras. So वहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ I eat this ragi dosa which I totally love it. So वहाँ का ragi dosa is very famous and along with the kapi. So coffee they say kapi. So हम्म, वो सर I would recommend that अगर कोई आ रहा है बॉम्बे definitely to visit Cafe Madras. These are the two places. If you want to eat pav bhaji, sir ऐसे कहते हैं कि बॉम्बे में सरदार पाव भाजी is a place which is very famous. But I also love it. But my favorite place to eat pav bhaji is to go to Girgaon Chowpatty or Juhu Chowpatty and eat the pav bhaji over there. You should definitely try eating the pav bhaji if you're going to Juhu Chowpatty or the Girgaon Chowpatty. And then apart from that, sir, Eid ke time pe Mohammad Ali Road. If you are a food lover, you should definitely visit the Mohammad Ali Road and try the different kebabs over there. And definitely, if you are a foodie, you should definitely go to during Eid and explore the food over there. And apart from that, चार चीजें हो गई sir. And there's this famous pizza house which is Joey's Pizza. अगर कोई youngster है and they want to try pizza, eating good pizza, so they should visit Joey's Pizza, which is at Malad. So these are my favorite 5 places, sir. And apart from that, अगर किसी को फालूदा आइसक्रीम खानी है, तो famous breakfast point is Kayani's also. That's an Irani cafe. हम्म, So the Kayani's cafe. And if you all want to have faluda, please do visit Baba Faluda, हाँ। which is आपने at Mahi. आपने जितनी जगह बताई, मुझे लग रहा है कि मैंने हद तक 80% उन जगहों पे मैं गया हूँ। चाहे वो बाबा फलूदा हो या फिर कीर्ति का वड़ा पाव हो, और चूड़ा पाव भी ट्राई किया है। अच्छा, बेस्ट पानी पूरी आपके लिए, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है पानी पूरी? क्योंकि एक ये हमेशा रहता है, लोग जो हम जैसे लोग, मतलब जो बेसिक डिशेस जानते हैं मुंबई के, हम लोग जानते हैं कि भेल पूरी है, वड़ा पाव है, पानी पूरी है। तो आपने वड़ा पाव के बारे में बताया, पानी पूरी बेस्ट कहाँ अच्छी मिलती है? सब पानी पूरी तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हर जगह पे पानी पूरी मुझे तो अच्छी लगती है बॉम्बे में सर। पानी पूरी टू बी वेरी ऑनेस्ट wherever I eat it I like it, but if you want to try pani puri at a good hygienic place, do visit Elko ki pani puri. Elko market is in Bandra, so Elko pani puri house is the name, sir. So one can definitely visit there and eat pani puri. चलिए, so thank you Dimple, it was nice talking to you. Thank you for sharing your inspiring journey with us. और आप जल्दी आपके जो भी आपने ड्रीम राइड्स प्लान किए हुए हैं, आप जल्दी उसको फुलफिल, अपने ड्रीम को करें। और जो भी लोग
और भी डिम्पल से जानना चाहते हैं इनके बारे में और इनकी जर्नी को इनका हिस्सा बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डिम्पल सिंह .01, सॉरी Dimple.Singh01. डिम्पल .सिंह 01। Yes. चलिए, थैंक यू, Thank you so और much. थैंक यू एंड होप टू सी यू समडे इन दिल्ली। और आप यहाँ पे आए, मे बी राइड करके मुंबई से दिल्ली आए, एंड देन विल होस्ट यू ऑन अ फूड वॉक दिल्ली में। एक हम लोग ब्रेकफास्ट राइड नहीं, इनफैक्ट फूड राइड करेंगे, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही क्यों, पूरे दिन फूड राइड करेंगे। Definitely, sir. I would love to come there and definitely love to meet you, sir. Okay. So yes, sir. Soon, sir. We shall plan everything soon when hopefully things goes better. सब कुछ ठीक हो जाए, sir. So yes, thank you so much, sir, once again for having me here and giving me the opportunity to share my experience. It was wonderful talking to you, sir. And yes, just a small message to everybody: stay home, stay safe, take care of yourself, and that's it. Follow your passion, no matter whatever is your passion, just follow it and never let fear overcome your dreams. That's it. Best wishes, Dimple. Thank you so much. Thank you.